Okay, so hi guys, मेरा नाम सौरभ है. I like to make content on cloud DevOps, Kubernetes in general. So in today's video, we will try to learn about some uh, monitoring part. How can we able to monitor our server so we can able to have a holistic view about my entire infrastructure. So for monitoring, the best open source tool which we are going to use and which is commonly used in the industry as well, which is Grafana. If you don't know what the Grafana is an open source tool which you can able to install in your on-prem instance, on your cloud instance, or either in your containerized Kubernetes environment as well. And you can able to get the holistic view about all the infrastructure. So for that, what we have to do is that we have to go to our cloud. This is my cloud. So let me just refresh that out. हम जाते हैं staging पे, and let me just try to create some instances. So for that, we have to create two instances. I will try to show you why. So let me just create two instances first. So दो instance हम create कर लेते हैं. Next, select the AMI image, go to all networks, cloud horizon part, and you have to select some title of that. Let me just give you monitoring demo. ठीक है, हम ये create कर लेते हैं. For example, monitoring, and create the instance, create the instance. So it will create a two instance in your cloud infrastructure. First one is monitor demo 1 and second one is monitor demo 2. I will try to show you why I'm creating this thing in two instance manner. So let me just copy this IP address, copy that thing, and go to my SSH, whatever the SSH client you're using. Let me just go to Terminus. Okay. Just a second. I'm checking where that it is on document or pictures. Okay, so let me just open my terminal. Whatever terminal you want to use, let me just use Terminator, which is a go-to Terminator I use generally. So let me just go to pictures. SSH. This is my monitoring.pam, which is by using this PAM file, I can able to log into my server. So SSH monitoring.pam ubuntu, and let me just copy that first IP address, which is 113, and paste this thing and copy that thing. So I'm getting the bad permission error. So you can able to fix it by that command, and yeah, bingo. I am successfully logged into the server. And let me just install Grafana into this thing. Okay, Grafana install Ubuntu. So you can able to install Grafana. So let's just copy paste this command and wait for a couple of minutes. Sudo apt install for the following command. That command is here itself. So आप यूज़ कर सकते हैं. मैं बस पैरेलली इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ. ठीक है, रिपोजिटरी हमने ऐड कर दी. बीटा रिलीज सेलेनियम स्टेबल रिलीज यूज़ करते हैं. apt update, and then we can able to install Grafana. So we have to wait for a couple of minutes to install or to download this binary and install into my server itself. So it is installed in my system. So we can able to check by using system ctl status Grafana -server. So right now it is in a inactive state.
I am able to see from here. आप रीस्टार्ट कर दीजिए, then it will be up and running. Okay, मैं इसको enable भी कर देता हूँ that whenever it will my server will create automatic reboot, it will automatically restart. So now what I have done is that I have installed some open source monitoring software in my Grafana system. And if I go to my IP address, this IP address, and followed by this 3000 port, Grafana by default run on 3000. Okay, so we can able to see कि भाई Grafana का जो भी default page है, it is online, it is up and running. So it is admin. The default password is admin, I guess. Default password is admin. If you want to change it, you can able to change it as well, but I am not going to change it right now. Now the first part is done. You have set up your Grafana. Now why I'm installing two server, I'm going to share you right now, because Grafana will work on data sources. Data sources mean different platform where he can able to consume the data and give you a holistic view about your infrastructure. So that's why in my another instance I'm going to install a Prometheus as a data source. So what I'm going to do is that I'm just going to terminal, split the terminal vertically or horizontally, and such that with the monitoring PAM Ubuntu followed by this IP. This is the IP of that my monitoring demo 2 server, which is a Prometheus server. I will try to make. So let me just rename that server. Na hostname CTL set hostname Grafana. So this will be the left side server will be my Grafana server, and this one will be my Prometheus server. Hostname CTL set hostname Prometheus. So this one will be my Prometheus server. Now we will try to install Prometheus in this server. So let me just zoom it a little bit, zoom the terminal, and let me just zoom it out and go to my Prometheus. Install Prometheus in Ubuntu. Okay, so let me just install my Prometheus in this thing. Yeah, shit. First thing first, update the repository. मैं update generally करता हूँ अपने system को for getting the rolling releases. So yeah, Grafana is installed, and then I will create a service user. What is this user? What is this particular command will do? It will create a system user which will act as a service user. मेरा जो Prometheus की application है, that will going to use this user. This user को कोई भी login की permission नहीं है, SSH करने की permission नहीं है. That's why we are going to create this thing. It is a very good practice. आप दूसरी module के अंदर भी you can able to use this service kind of concept. It will make your application much more secure and much more reliable. Okay, now let me just copy this thing and go to here as well. I'm duplicating a tar file from Prometheus server. It will give me that Prometheus वाला link, और फिर unzip कर देते हैं हम इसको once that thing will be running. Okay, Prometheus is exported right now, which is a good sign, and I am going to move this command parallelly one by one. Okay, so move the Prometheus wala thing. So console etc Prometheus console library Prometheus YML ये सब हम अपनी Prometheus.yml में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, and the Prometheus will listen to YML, which is yet another markup language, which is a modified JSON language. So if you want to customize the Prometheus.yml thing, you will going to customize or configure the Prometheus server. So you have to check this thing. So let me just go to preference. मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. अदरवाइज क्या है, अपने को समझ में नहीं आएगा. अपने को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है. वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम. ठीक है, वाइट एंड ब्लैक. ठीक है, ये Prometheus.yml की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, which is this one. I can able to add another one, but I am not going to do it right now. मुझे कोई भी अभी इंटरेस्ट नहीं है.
what I'm going to do is that I'm just creating a service file. I'm just creating a service file where I can able to manage my Prometheus server as well. So daemon reload करते हैं and start and enable the service and check the service right along. अच्छा मेरी Prometheus की एप्लीकेशन फट रही है. So अब चेक करें भाई, अब आएगा मजा. तो फॉर चेकिंग द ट्रबल शूटिंग पार्ट Prometheus चेक करते हैं. अरे भाई अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है. वो क्या बोल रहा है भाई? फेल हो गया है कॉन्फ़िग फाइल etc स्टोरेज पाथ दिस थिंग, और ये बोल रहा है गो राउट रनिंग दिस. ठीक है जी, ठीक है. अब वो अंग्रेजी में 2-3 चीज़ें बोल रहा है, पकड़ते हैं इसको और देते हैं भाई चैट जीपीटी को. बिफोर चैट जीपीटी लेट मी जस्ट चेक कि हमने कुछ मिस तो नहीं करा ना. हमने कुछ चेंज नहीं किया एक्चुअली ना, हमने कुछ चेंज ही नहीं करा है, हमने कुछ चेंज ही नहीं करा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू जस्ट सो मैं आपके सामने ट्रबल शूट कर रहा हूँ. सो मैंने कोई प्लानिंग से वीडियो नहीं बनाई है, इम्प्रोम्प्ट वीडियो है. तो चेक करते हैं. अच्छा जी, अच्छा जी, बेहतरीन बेहतरीन. So I'm just most probably this issue came when any permission related issue is coming to my server. So let me just check कि proper broken map वाली condition है कि नहीं है. और ठीक है, ठीक है, ठीक है. Check the Prometheus user and service thing. Prometheus ही भैया, Prometheus ही हर जगह बैठा हुआ है भाई. ठीक है, 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 ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. चीता आप अपने कुछ हाई लेवल आपने 2-3 चीज़ें करी एंड बूम यू एबल टू अप योर Prometheus. ठीक है, तो ये होती है लाइव ट्रबल शूटिंग. चैट जीपीटी के थ्रू आप बहुत चीज़ें आसानी से कर सकते हो. ठीक है. नाउ Prometheus तो रन हो गया, द सर्विस इज एक्टिव राइट नाउ. बट हमें क्या करना है? Prometheus दिखता कैसे है भाई? Prometheus को दिखना भी तो चाहिए भाई. Prometheus है भैया, वो एकदम मार्वल वाला बंदा है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट Prometheus बाय डिफॉल्ट रनिंग ऑन द पोर्ट 9090. This one Prometheus is running on port 9090. This is the you can see this is a data source. ये एक बहुत बड़ा बिग फैट सर्वर है जो कि डेटा कंज्यूम करता है डिफरेंट सोर्स से. डिफरेंट सोर्स को कंज्यूम करता है, ये मोल्ड करता है, और यू कैन एबल टू यूज SQL क्वेरीज एज वेल टू कस्टमाइज द डेटा एंड यू कैन एबल टू शिप इट टू द वेंडर जो भी आपका फ्रंट एंड है. हमारे केस में ग्राफाना है. ठीक है जी. नाउ Prometheus तो इंस्टॉल हो गया है, विच इज अ गुड थिंग. नाउ Prometheus इंस्टॉल होने के बाद भैया हमें एजेंट इंस्टॉल करने पड़ेंगे. बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर एक एजेंट होता है विच इज कॉल्ड नोड एक्सपोर्टर. फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ VM. मैं नई VM बना लेता हूँ. मैं 2 VM बनाया था ताकि आपको थोड़ा सा मजा आएगा. ठीक है जी. हम Ubuntu को ही यूज करते हैं. आई कैन एबल टू यूज अनदर OS एज वेल, बट मेरे पास उसकी EMI नहीं है अभी. मैं 2 VM बनाता हूँ कॉल्ड नोड एक्सपोर्टर के नाम से. और मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग यहाँ पे बनाता हूँ नोड एक्सपोर्टर एजेंट. हम एजेंट है बना रहे हैं. ये मैं एक एजेंट का नाम दे रहा हूँ. डजंट मीन कि ये एजेंट ही होना चाहिए. आप एक इसमें एप्लीकेशन हो सकती है, वेब फ्रंट एंड बैक एंड जो भी हो सकती है जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप जरूर देखिए वाली चीज कि हम किस तरीके से एजेंट को रजिस्टर करते हैं अपने Prometheus डेटा सोर्स के अंदर ताकि हम ग्राफाना को एक विजुअलाइज ग्राफ दे सके. नाउ थोड़ा सा वेट करते हैं भाई. ये बिल्ड होगा, बिल्ड होगा, बिल्ड होगा, बिल्ड होगा, बिल्ड होगा, बिल्ड होगा, बिल्ड हो गया जी. हमें एक IP एड्रेस मिल गई. तो मैं एक IP एड्रेस को कंसोल लेता हूँ, मैं इसको एग्जिट करता हूँ रिस्टोर ऑल टर्मिनल, और मैं एक स्प्लिट करता हूँ एक वर्टिकल टर्मिनल, नहीं वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल टर्मिनल प्रेस करते हैं. और यहाँ पे सेम monitoring.pem Ubuntu एंड फॉलोड बाय द पर्टिकुलर IP एड्रेस. अच्छा जी, अभी तक हुआ नहीं है क्या? अभी तक सर्वर जिंदा नहीं हुआ क्या भैया? 114
ठीक है, हम यहाँ पे आ चुके हैं, इसको बड़ा कर देते हैं हम। सो जूम द टर्मिनल, भाई जूम कर दो भाई। sudo su node exporter agent 1 है, ठीक है, which is a agent 1 which is a server 1। आपके केस में ये कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन हो सकती है जिसको भी आप मॉनिटर करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, विंडोज के लिए विंडोज का क्लाइंट है, लिनक्स के लिए लिनक्स के क्लाइंट है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज गो टू चैट जीपीटी, और नहीं चैट जीपीटी पे नहीं जाते, इंस्टॉल प्रोमीथियस हो गया तो इंस्टॉल नोड एक्सपोर्टर, नोड एक्सपोर्टर, ठीक है जी। नोड एक्सपोर्टर पर जाते हैं, कोई भी आप उठा लीजिए। now what we have to do is that just copy this command, भैया कॉपी कर लो आप कमांड, पेस्ट कर लो भैया यहाँ पे, ठीक है जी। हम पेस्ट कर रहे हैं, हमने tar फाइल डाउनलोड करी है, इससे हम क्या करते हैं, अब हम मस्त मस्त चीजें करते हैं, पेस्ट मारते हैं, ठीक है जी। so what we have to do is that we have downloaded the binary and we have able to export it into मैंने हमने unzip करा है basically। okay, now just have to create a service file which is a node exporter। so you will see हम कितना easily हम अपनी configuration फाइल को बना सकते हैं मैनुअली। यही तो पावर है लिनक्स की, यही तो मजा है सिस्टम डी के साथ खेलने में। now डीमन रीलोड करा हमने, रीस्टार्ट करा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पेस्ट मारा हमने, जैसे ही पेस्ट मारा देन इट इज ऑलरेडी रीस्टार्टेड एंड वी विल चेक कि भैया स्टेटस में ही चल रहा है नहीं चल रहा। बिल्कुल चल रहा है सौरभ जी, बहुत अच्छी बात है, चल रहा है। नाउ आपको आपके एजेंट की तरफ का काम आपका डन है भैया, मस्त, आपने यहाँ तक चला दे तो मस्त है। नाउ राइट नाउ आपके प्रोमीथियस सर्वर और आपका जो एजेंट है, एजेंट सर्वर है, जो भी क्लाइंट सर्वर है, उसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए पोर्ट 9100 की, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो हमारा नोड एक्सपोर्टर है वो कैनवस पोर्ट पे चलता है 9100 which is a TCP1। ओके, नाउ एग्जिट करते हैं हम इसको, एग्जिट करते हैं। एग्जिट कैसे करते हैं, रिस्टोर आवर टर्मिनल। हमारा प्रोमीथियस वाला सर्वर कौन सा था, हमारा प्रोमीथियस वाला सर्वर ये वाला था, तो इसको जूम करते हैं भैया। अब नाउ प्रोमीथियस की बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है, नैनो etc prometheus.yml। this is the prometheus file which is right now। now what we have to do is that we have to add a target file। हमें टारगेट ऐड करना है। टारगेट कैसे ऐड करते हैं सौरभ भाई, टारगेट ऐड करते हैं भैया यहाँ से। सो हम क्या करते हैं जी, हम काम करते हैं, इसको चैट जीपीटी को देते हैं भैया। चैट जीपीटी किस लिए है, नाउ add a target and हम टारगेट को ऐड करते हैं, हम उसकी आईपी एड्रेस लोग करते हैं which is a 114 followed by the 9100 canvas। so and the name is node exporter agent 1। ये हमने डाल दिया। इट विल ऑटोमेटिकली गिव मी द अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर अनदर स्क्रैप जॉब मैटर, ठीक है जी। हमने इसको कॉपी करा जी भैया, और हमने कहाँ डाल दिया, इसके जस्ट नीचे डाल दिया, पेस्ट मारा जी हमने। मेक श्योर करना आपका YAML का ओरिएंटेशन जो है वो खराब ना हो, बिल्कुल ठीक, आपका ओरिएंटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं है। इफ यू वांट टू चेक यू कैन एबल टू चेक दैट कि भैया आपका प्रोमीथियस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो खराब तो नहीं हुई है। प्रोमीथियस की एक प्रॉम्प्ट टूल करके एक होती है, मुझे याद नहीं है कि नहीं है, देखता हूँ। प्रॉम्प्ट टूल ठीक है, और इसके बाद क्या होती है कमांड, हाइफन कॉन्फिग फाइल। चलो छोड़ो ना, डायरेक्ट मारते हैं, मजा आएगा। एरर आएगा तो पता चल जाएगा ना। पेस्ट मारते हैं भैया, और हमारा डब्बा भी ऐड हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, प्रोमीथियस हमारा प्रॉपर्ली रन हो गया है। अब हम क्या चलते हैं, हम जाते हैं टारगेट्स के अंदर। देयर इज अ थिंग कॉल्ड टारगेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एक खुद का टारगेट जो लोकल हो, जो कि प्रोमीथियस खुद है, और एक हमारा दूसरा टारगेट है विच इज अ एंड पॉइंट विच इज अ नोड एक्सपोर्टर एजेंट 1। हम इसके मैट्रिक्स पे जाते हैं, वी कैन एबल टू गेट द मैट्रिक्स एज वेल। नाउ आपने प्रोमीथियस की तरफ से डन कर दिया है काम, अपने एजेंट की तरफ से डन कर दिया है, ठीक है। आपका प्रोमीथियस एजेंट सक्सेसफुली एबल टू कंज्यूम द डेटा फ्रॉम द नोड एक्सपोर्टर इटसेल्फ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन योर ग्राफाना सर्वर एंड प्रोमीथियस सर्वर, ठीक है। ग्राफाना पे चलते हैं भैया, ग्राफाना पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपन कहाँ था कनेक्शन पे चलते हैं, ऐड न्यू डेटा सोर्स कनेक्शन पे चलते हैं। हमारा जो डेटा सोर्स है वो प्रोमीथियस, जो हमारा प्रोमीथियस है। प्रोमीथियस कहाँ हो बाबू आप, प्रोमीथियस, अरे भैया प्रोमीथियस कहाँ है भाई तू, प्रोमीथियस ओपन करते हैं भैया। इंस्टॉल तो है, ओपन तो हो जा, ठीक है भैया, ओपन हो गया। ऐड न्यू डेटाबेस सोर्स पे चलते हैं भैया, प्रोमीथियस यहाँ पे चलते हैं हम, HTTP फॉलोड बाय द प्रोमीथियस आईपी एड्रेस। प्रोमीथियस का आईपी एड्रेस क्या है, 9090 व्हिच इज दिस वन। इसको कॉपी करा जी हमने,
कहाँ गए विच इज दिस वन। ठीक है, हमने यहाँ तक डाल दिया विच इज गुड थिंग। नाउ यहाँ तक आपने डाल दिया, अब नाम डाल दो प्रोमीथियस सर्वर 1। ठीक है, जब आपने डाल दिया, सेव एंड टेस्ट कर दिया। ठीक है, क्वेरी वेरी मस्त चल रही है एकदम, ओपन मैट्रिक्स मेल्टडाउन यहाँ पे चल रहा है। मींस यू कैन एबल टू गेट द डेटा। प्रोमीथियस सर्वर का भी आपको मैट्रिक्स आप देख पा रहे हो। ठीक है, यानी प्रोमीथियस सर्वर भी हमारा वर्क कर रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर गेटिंग सम डेटा फ्रॉम द एजेंट एज वेल। हमें एजेंट से भी तो पता होना चाहिए। फॉर दैट हम जाते हैं कहाँ पे, ग्राफाना की ऑफिशियल वेबसाइट, ग्राफाना डैशबोर्ड, ठीक, ग्राफाना लैब्स पे चलते हैं। सबसे कॉमन बढ़िया नोड एक्सपोर्टर के उठाते हैं, विच इज दिस वन। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कॉपी करते हैं इसका क्लिपबोर्ड आईडी, वो जो जाते हैं हमने हमारे ग्राफाना डैशबोर्ड पे। गो टू डैशबोर्ड, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डैशबोर्ड हियर। गो क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड। नहीं, स्क्रैच से नहीं बनाते, इंपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, आईडी डालते हैं हम एंड नोड एक्सपोर्टर 3 एंड दिस थिंग इट इज आस्किंग मी द पाथ एज वेल। सो यू विल सी आप यू कैन एबल टू गेट द मैट्रिक्स ऑफ योर इंटायर ग्राफाना डैशबोर्ड। ओके, ठीक है, यू विल सी कि भैया मुझे मेरे मेरे एजेंट की प्रॉपर डिटेल मिल रही है। कितना सीपीयू बिजी है, कितना सिस्टम लोड है, कितना रैम्स यूज्ड है, कितना सीपीयू है, रैम कितना है, रूट एफएस कितने जीबी का है, कब से जिंदा है वो सर्वर, जब विच इज अ गुड थिंग। 6.9 मिनट से जिंदा है वो। सीपीयू की जितनी मैट्रिक्स है, फलाना सब आई कैन एबल टू गेट दैट थिंग। मजा आ रहा है भाई। नाउ द बेस्ट पार्ट, अगर मुझे ये पर्टिकुलर यूआरएल को मुझे अपने क्लाइंट को देना पड़े, किसी बंदे को देना पड़े कि भैया ये क्लाइंट ये यूज करो, बाय यूजिंग दिस थिंग यू कैन एबल टू यूज दैट, यू कैन एबल टू get this thing along with your client developer जिसको भी देना चाहते हो। right now it is running in my public IP, in my private IP address which is 192.168.113। इसको अगर मुझे करना है तो भाई Cloudflare के टनल का यूज करेंगे हम। Cloudflare लॉगिन, हम Cloudflare पर लॉगिन करते हैं जी, और वेट करते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं जी। गो टू जीरो ट्रस्ट पे चलते हैं जी हम, एंड क्रिएट द टनल हियर एज वेल। यहाँ पे हम जाते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल पे, नॉट एक्सेस कंट्रोल, एक्चुअली कनेक्टर पे जाते हैं हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं टनल, और टनल का नाम रखते हैं हम ग्राफाना सेल्फ होस्ट। ठीक है जी, सेल्फ होस्टेड कॉपी करा जी हमने कॉपी करा, यहाँ पे हमने उसने वो डिटेल दे दी, इसको कॉपी करा हमने, और हमने अपने ग्राफाना वाले सर्वर पे डाला। तो ग्राफाना वाला सर्वर कौन सा है हमारा, रिस्टोर टर्मिनल, दिस इज द ग्राफाना सर्वर ना। इसको पेस्ट मारा भाई, इसको जूम करते हैं भाई, ठीक, ये वाला इंस्टेंस भी हो गया। और सम मोमेंट पे टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, सर्विस को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे हम सर्विस को इंस्टॉल करेंगे इट विल स्टार्ट माय सर्विस, इट विल स्टार्ट माय Cloudflare डी टनल। सो फिर बहुत ही कुछ सेकंड के अंदर हमारा देखो कनेक्टर भी ऐड हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और हम डालते हैं मॉनिटरिंग, हम डालते हैं डैशी नॉट ग्राफाना का कोई वो बताओ मुझे आप, फॉर एग्जांपल ग्राफाना डैश विद दैट थिंग, ऑप्शन पार्ट आपको डालो ना डालो बराबर है। और यहाँ पे डालते हैं हम कि क्या, ग्राफाना के आईपी एड्रेस, विच इज द ग्राफाना आईपी एड्रेस, ग्राफाना के आईपी एड्रेस है इतनी। इसे कॉपी करा जी हमने, पेस्ट करा जी हमने, कंप्लीट सेटअप। अच्छा ये वैलिड नहीं है, ये तो वैलिड होगा, कंप्लीट सेटअप। अच्छा ये भी वैलिड नहीं है भैया, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाएं, अब तो वैलिड होगा भैया।
कि अभी भी वैलिड नहीं है। ठीक है जी, हमारा ये हो गया ऐड। हम क्या करते हैं इसको, सॉरी, हम क्या करते हैं, ग्राफाना का ये ऐड हो गया है कितने मिनट पहले, जस्ट सेकंड पहले। ये वाला ग्राफाना का सेल्फ होस्टेड वाला बंदा हमारा ऐड हो चुका है। नाउ द थिंग इज कि हमने इसके अंदर कौन सा यूआरएल दिया था, मुझे खुद ही भूल गया मैं। हमने डाला था ये वाला राउट, कॉपी करा इसको हमने, इसको ओपन करा हमने, तो ग्राफाना ओपन हो गया हमारा पब्लिक इंटरनेट के अंदर। नाउ दिस इज यू कैन एबल टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। नाउ एडमिन, सॉरी एडमिन, skip कर दिया, I don't want that right now. Go to dashboard, go to node exporter full और bingo। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। I can able to access my self-hosted private subnet IP addresses details of my server into my public internet। मैं कहीं से भी अपना एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, which is a good part। नाउ इस वीडियो में मैंने बहुत ही स्मॉल चंक ऑफ ग्राफाना और प्रोमीथियस इन सब का मैंने यूज करा है। यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग, यू कैन क्रिएट अ कस्टम डैशबोर्ड, यू कैन क्रिएट अ अलर्ट मैनेजर, यू कैन अलर्ट टू डिफरेंट डेटा सोर्सेज, फॉर एग्जांपल टीम, स्लैक, ईमेल्स पे, डिफरेंट चैनल पे आप अलर्ट भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अस नोड गोज डाउन, एक कोई भी हमारा एप्लीकेशन बैठ जाता है, देन यू कैन एबल टू यूज दैट। और मल्टीपल चीज। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस इंटायर स्टैक कैन बी इंस्टॉल इन Kubernetes एज वेल। आप Kubernetes के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो या, और द बेस्ट थिंग इज यू कैन एबल टू शेयर इट। मैंने अभी चेक करा मैं इसको शेयर करता हूँ, शेयर एक्सटर्नली। सो कैसे करते हैं, मैं भूल गया। अच्छा, कॉपी एक्सटर्नल लिंक, इसको इनकॉग्निटो में खोलूं क्या, पेस्ट मारो क्या, अरे ओके। सो यू हैव टू चेंज दैट लोकल होस्ट 300 थिंग ना। हम कैसे करते हैं इसको, अब देखता हूँ, मजा आएगा मजा आएगा। ग्राफाना पे चलते हैं, ग्राफाना पे चलते हैं। ग्राफाना का बाय डिफॉल्ट आपको अगर नहीं पता है एक्सटर्नल यूआरएल कैसे चेक करते हैं, तो मैं भी चेक करता हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो नैनो etc ग्राफाना, और ग्राफाना की फाइल होती है grafana.ini। हाँ, ये होती है फाइल जितना मुझे याद है। सो ग्राफाना बेस चेंज ग्राफाना बेस यूआरएल फ्रॉम लोकल होस्ट टू आर डोमेन। मुझे याद नहीं है बट मैं चेक करता हूँ। ठीक है। डोमेन, तो डोमेन यही होता है क्या, यहाँ पे डोमेन जैसा कुछ है क्या? बिल्कुल जी, डोमेन है जी, ससुरा का नाती डोमेन है। आप डोमेन पे क्लिक करिए एंड डोमेन आपका कौन सा है भैया सौरभ जी? डोमेन कौन सा है आपका? ये है आपका ग्राफाना -site। कॉपी करा जी आपने, पाजी आपने यहाँ डाल दिया जी। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया। अब क्या करना है सौरभ जी, देखते हैं। अब सर्वर फ्रॉम सब पार्ट, सर्वर HTTP है। ठीक है जी। पहले हम चेक करते हैं बाइट इसी को यूज करके कि हमारा यूआरएल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो मैंने काम आया था ना, मजा आता है। ठीक है जी, स्टेटस पे चलते हैं, हमारा ये हो गया। नाउ गो टू दिस थिंग एंड शेयर दिस थिंग, कॉपी द शॉर्ट लिंक, रिफ्रेश करते हैं। लेट मी जस्ट चेक माय एप्लीकेशन इज स्टिल रनिंग, तो विच इज अ गुड थिंग। मेरी एप्लीकेशन अभी भी स्टिल रनिंग है। मैं कॉपी करता हूँ एंड आई कैन जीनी, मैं क्या करता हूँ, आई विल दिस टाइम आई विल चेक कि भैया एक्सटर्नली पे कौन सा लिंक बन रहा है। कॉपी एक्सटर्नल लिंक हमने कॉपी करा और हम आए इनकॉग्निटो में, हमने पेस्ट कर दिया। बिंगो, हमारा यूआरएल अब ठीक आ रहा है। लेकिन यूआरएल ठीक नहीं आ रहा, अभी 3000 इस पे आ रहा है। 3000 नहीं आना चाहिए, सो 3000 आएगा तो नहीं चलेगा। फॉर दैट यू हैव टू प्रॉक्सी दैट थिंग। सो ठीक है, बेस यूआरएल में अभी भी ये आ रहा है। सो इसको हम ठीक करते हैं। आ जाओ, ठीक कैसे करते हैं सौरभ भैया? चलते हैं यहाँ पे,
नाउ if I go to my application ना, अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं, अरे नहीं ये नहीं, मैं वो लिंक पेस्ट करता हूँ। लिंक कौन सा है हमारा? लिंक भैया सारे बंदे लिंक मांग रहे हैं, तो लिंक कौन सा है हमारा? ये लिंक है हमारा, ये लिंक है हमारे। इसमें क्या करते हैं हम, इसको 3000 वाला हटा देते हैं, 3000 एक पल के लिए हटा देते हैं। देन या बिंगो, आई कैन एबल टू एक्सेस माई डैशबोर्ड इटसेल्फ। तो डैशबोर्ड तो हमारा एक्सेसिबल हो रहा है भैया, इनवैलिड इन पैनल आईडी। बट हाँ कुछ ना कुछ इशू आता है, तो ये विल दैट विल वी विल सी इन फ्यूचर वीडियोज एज वेल कि हम कैसे करके चेक कर सकते हैं इनवैलिड पैनल आईडी। ओके ठीक है ठीक है। चेक करते हैं वाली वीडियो में ही हो पाएगा कि हमें और टाइम लग जाएगा। हाँ अच्छा, ये हमारा दूसरा एरर है नल सब एरर का। ये वाला तो हम अभी देख सकते हैं, बट या वी हैव फिक्स्ड दैट प्रॉक्सी वाला थिंग। एनीवन विद द लिंक इनेबल टाइम डिस्प्ले दिस थिंग, डिस्प्ले पॉज द एक्सेस शेयर। हाँ बिंगो, ये चल गया। तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमें कोई भी उसको शेयर करना है, देन क्लिक द शेयर बटन, और हम इसको आप देखेंगे वो वाला एरर जो आ रहा था 300 प्रॉक्सी वाला, वो हमारा ठीक हो चुका है। 2-3 पैरामीटर में चेंज करने पड़े हमें, एंड नाउ वी विल एबल टू शेयर दैट थिंग टू द कम्युनिटी एज वेल, टू द different peoples who can able to access my dashboard itself. You can able to use that. You can able to use that very easy in a very long format videos. Okay, now this is it guys. In upcoming videos I will try to check what are the more components I can able to cover to explore how we can able to learn and grasp more stuffs. Okay, bye. Keep learning, keep on learning. Shabba khair.